multiple variable or several variable, ठीक है. So if this limit exists, then these three will occur. That means this graph y equal to fx has a non-vertical tangent. अगर vertical होगा, this will be infinity at the point x naught fx naught, and f may be closely approximated by a linear functions near 0. सी सेक्शन 3.5 ये मैं बता देता हूँ ये क्या कह रहा है. बेसिकली अगर ऐसा आपका कर्व है तो यहाँ पे मान लो आपका x नॉट पॉइंट है एंड दिस इज x नॉट fx नॉट, ठीक है. तो इफ यू जस्ट टेक दिस पार्ट, सो ये अगर बहुत छोटा सा पार्ट है विच इज नियर टू x नॉट के नेबरहुड में अगर मैं एक पार्ट इसका काट कर लूँ तो ये एक लाइन बन जाएगा, ठीक है. उसी को बात कह रहा है कि f may be closely approximated. तो यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा, we can approximate this graph, only this part. We can approximate that part by अच्छा रिकॉर्ड नहीं चल. Okay, we can approximate that part with a line. That's what they are saying. ये कैसे करते ये उतना मतलब आप लोग कंसेप्ट ले लो, ठीक है. अगर आपको देखना है तो गो टू सेक्शन 3.5 एंड इट्स वेरी इजी, वरना मैं बाद में दिखा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है. तो बेसिकली हमें दो तीन चीजें दिमाग में रखने, एक तो और एक कंटिन्यूअस हो गया. बेसिकली डिफरेंशिएबल होने के लिए स्मूथ होना चाहिए. फीट कर्व इन केस ऑफ वन वेरिएबल एंड सरफेस in case of multiple variable, or you can say like two variable, that means z equal to fxy, ठीक है. तो these things needs to be smooth जो है smooth literal sense में. Now we need to define that smoothness mathematically. For that what we need to do? Okay, so now these things same analogy जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है. So the has a non-vertical tangent. तो हमने उसमें देखा था, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव में हमने क्या देखा था, जब भी आप किसी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो दैट मींस यू आर क्रिएटिंग ए प्लेन along that variable, and that plane and the surface, that intersecting curve, और उस कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे we are drawing a tangent, and that part is giving us the partial derivative fx and fy. okay, fx and fy, fx और fy का जियोमेट्रिक सिग्निफिकेंस हमने लास्ट क्लास में देखा था. अब हम देखेंगे कि what are the conditions we need to assume so that we can say that this function f of xy is differentiable at x naught y naught. The mere existence of partial derivative will not assure that this will be differentiable. okay, so what are the conditions? if you just analogy अगर आप यहाँ पे if you draw analogy between one variable and two variable, then the surface has a non-vertical tangent plane at the point x naught y naught z naught, like this figure, and the values of f points near x naught y naught can be closely approximated by the values of a linear function, or that means plane. okay, यहाँ पे आपका लाइन था, यहाँ पे आपका प्लेन हो जाएगा. प्लेन भी 3 डायमेंशन है, that will be linear function. that means if you just cut this part, so you can approximate this part of the curve by a equation of a plane. okay, and f is continuous at x naught y naught. Now this is the analogy from the single variable concept. okay, now this part is really important. ये हमने लास्ट क्लास में स्किप किया था. ठीक है, ये आप लोग घर जाके भी इसको फिर से पढ़ना. अभी अगर पूरा सही से समझ में नहीं आ रहा है, we can spend one more class on this. It's a little advanced for you guys. Now लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. ठीक है, what is it saying? One could reasonably conjecture that a function f of 2 or 3 variables should be called differentiable at a point if all the first order partial derivatives of the function exists at that point,
Unfortunately, this condition is not strong enough to guarantee that the properties above hold. ठीक है, तो existence of that means fx and fy ये अगर exist कर जाता है, then we cannot say that these three property will hold. That's what they are saying. Okay. For instance, you saw example 9 of section 13.3. What is it? Example 9. This is your example 9. तो यहाँ पे देखो इस example में show that fx and fy exist at all points x y. Explain why f is not continuous at 0 0. ठीक है, तो 0 0 पे for the definition of the function we have seen that partial derivative exists but f is not continuous at 0 0. Okay, so this kind of situation, how to tackle this kind of situation, for that our coming assumptions are required. That means mere existence of both first order partial derivatives for a function is not sufficient to guarantee the continuity of the function, right? क्योंकि हमें differentiable होने के लिए of course the function needs to be continuous. Now to determine what else we should include in our definition, तो इस चीज को tackle करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? It will be helpful to re-examine one of the consequences of differentiability for a single variable function. Okay, तो ये हमें समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि इससे हमें आसानी हो जाती है थोड़ा कि हम डबल वेरिएबल में कैसे करेंगे. ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए now suppose fx is differentiable at x equal to x naught. तो डिफरेंशिएबिलिटी के क्या कंडीशन था? That means f prime x naught, f prime x at x naught. इसको अगर हम लिमिटिंग डेफिनेशन से जाते हैं तो व्हाट वाज द डेफिनेशन? लिमिट f ऑफ x प्लस x, सॉरी, x naught प्लस माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. और डिफरेंस क्या है हमारा? डेल्टा एक्स है. ठीक है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ differentiation in single variable. Okay, now if you just consider the above part, now this part has been denoted by delta f, this whole part. Okay, and now if you remove the limit, तो of course they will not be equal. लिमिट है तभी हमारा ये इक्वालिटी साइन है. if you remove the limit then this condition will appear. That means f of x naught, which is basically delta x, delta f, now यहाँ पे इन्होंने क्या करा? अप्रोक्सीमेट साइन से, क्योंकि ये जो हमारा डेल्टा x है that will be multiplied with this, so delta f is approximated as f prime x naught into delta x. ठीक है, they are not equal because limit is not there. That means the difference between these two points. ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा है, यहाँ पे आपका x नॉट है और आगे या पीछे किसी भी नेबरहुड में x नॉट प्लस डेल्टा x है. That means ये अगर एकदम इसके आसपास आएगा then this thing will happen. Okay, तो यहाँ पे लिमिट तो है नहीं हमारा, so they will not be equal. That means they will be different and there will be some error. If you calculate the difference, see in the next step, they have calculated the difference. That means यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं हम. If x is differentiable at x equal to x, then let denote the change in f that corresponds to the change in delta f in x from x naught to x plus delta x. ठीक है, so यहाँ पे 3 section 3.5 में यही बताया गया है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, that delta f is approximately equal to f prime x naught into delta x. ठीक है, now approximation है, that means there will be an error. That means, and our job is to minimize that error, then only we can find out the derivative. Okay, now provided that if delta x is close to 0, of course limit tends to 0 होता है, that means it is close to 0.
In fact, for delta x close to 0, the error मैं कह रहा था आपको ये approximate है, that means they are not equal, so there will be some error. If you now this is the difference sign, okay, this is, do not consider it as subtraction, this is basically the difference sign. In this approximation will have magnitude much smaller than that of delta x, because now if you can calculate this limit, delta f की जगह पे आपका ये बैठ जाएगा, ठीक है, then this will happen, and this part is what, this part is nothing but f prime x naught, अभी हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से देखा, and this will become 0. ठीक है, तो ये होने की बहुत ज्यादा जरूरत है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सेम कंसेप्ट, तो यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एक्स is just distance between the points x naught and delta x naught plus delta x, we see that when two points are close together, the magnitude of the error in the approximation will be much smaller than the distance between the two points. अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे वही जो डायग्राम है, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से ड्रॉ किया है। तो दिस इज योर एक्स नॉट, दिस इज योर एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, एंड दिस इज द डिफरेंस, दिस इज योर डेल्टा एफ, दिस इज योर डेल्टा एफ, ओके। नाउ यहाँ पे आप लोग देखो, these are the two parts, these are the two parts, this whole thing is delta f, and this part is f prime x naught into delta x, this part, and तो रिमेनिंग पार्ट विल बी डेल्टा एफ से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो ये वाला पार्ट यहां से ये जितना था हमारा, दिस इज डेल्टा एक्स इज लार्जर देन दिस पार्ट, दिस इज द एरर पार्ट। नाउ अगर ये जो है, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स को अगर हम लिमिट लगा के इसको 0 की तरफ कर रहे हैं, so this part will also become 0, okay, this part will also become 0, then only we can say that this curve is smooth curve, तभी हम कह सकते हैं ये कर्व जो है हमारा स्मूथ कर्व होगा, ठीक है। तो क्या, हाँ, द एक्सटेंशन ऑफ दिस आइडिया, यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। Since the magnitude of delta x is just the distance between x naught and x naught plus delta x, we see that when the two points are close together, the magnitude of the error in the approximation will be much smaller than the distance between the two points, okay, जो हमने अभी डायग्राम में देखा। The extension of this idea to the function of 2 or 3 variables is the extra ingredient, okay। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी चीज को हम एनालॉगसली सेवरल वेरिएबल के केस में हम यूज करेंगे, ठीक है। अब बताओ यहां तक, पहले बिफोर गोइंग इनटू द मल्टीपल वेरिएबल केस, बताओ यहां तक किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत है या नहीं? इज देयर एनी डाउट? क्योंकि ये अगर समझ गए तो आप मोर देन वन वेरिएबल का भी समझ जाओगे, यही आपको समझना है। यहाँ पे हम अचीव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट नहीं है, या किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, एकदम सब कुछ ऊपर से गया? सर वो ग्राफ वाला पोर्शन एक बार फिर से समझा दीजिए। ग्राफ वाला पोर्शन सर एक बार ऊपर वाला भी समझा दीजिए सर। ऊपर वाला से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर वाला कहाँ पे? सर वहां से जहाँ से आपने सपोज से स्टार्ट करा था, यहाँ थोड़ा नीचे नीचे। अच्छा, थोड़ा नीचे। ये वाला पेज समझ में आ गया किस तरह से हमने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के कंसेप्ट को एनालॉगसली फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ले गए। बेसिकली यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के लिए ही करते हैं हम, 3 वेरिएबल्स वगैरह सिर्फ सेम होगा सारा। उसके बाद यहाँ पे जो है दिस पार्ट, दिस पार्ट, तो यहाँ पे हमें क्या देखना था? मैंने क्या बोला? स्मूथनेस, स्मूथनेस इज नेसेसरी। डिफरेंशिएबल होने के लिए कार्व या सरफेस को स्मूथ होना बहुत जरूरी है। तो सारा जो हम ये कांड कर रहे हैं स्मूथनेस को एश्योर करने के लिए कर रहे हैं, ओके। तो स्मूथनेस को हम एश्योर कैसे करेंगे? तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अब तुम इसमें आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, एफ प्राइम एक्स नॉट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0
f of x plus x naught plus delta x minus f x naught divided by delta x। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो। तो यही स्मूथनेस हमारा एश्योर करता है इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। दैट मींस x नॉट के नेबरहुड में कोई और एक पॉइंट ले रहा हूं, डेल्टा x क्या है, टेंड्स टू 0, दैट मींस इट लाइज अराउंड 0, 0 के बहुत करीब है ये डेल्टा x जो हमारा क्वांटिटी है, ठीक है। तो दैट मींस ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमारा अगर कोई वैल्यू दे रहा है, ठीक है, दैट मींस वी एश्योर आवरसेल्फ, मतलब हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। दैट मींस उस स्पेसिफिक पॉइंट में एक यूनिक स्लोप मिलेगा हमें टेंजेंट के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम अब हमें क्या करना है, यही कंसेप्ट जो है हमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ले जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने इस डायग्राम का मदद लिया। उसके लिए हम क्या 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 देख रहे हैं, एक तो हम देख रहे हैं एरर। एरर क्या है हमारा, दिस पार्ट इज डेल्टा एफ, ये हमारा कोडोमेन में है, दिस पार्ट f of x naught and f of x naught plus delta x, so this is the difference of delta f। तो x naught और x naught plus delta x के लिए ये हमारा टोटल डिफरेंस। अगर हम लिमिट को हटा देते हैं, इफ यू रिमूव द लिमिट, तो हमारा हम दो क्वांटिटी कर लेते हैं, ठीक है। एक तो हमारा डेल्टा f हो गया और दूसरा हमारा डेल्टा x इंटू एफ प्राइम, delta f is approximately equal to delta x into f prime delta x naught, ठीक है। तो ये जो है this is the approximation sign, that means they are not equal, that means what, there is a slight difference। now we are saying that now this difference is much smaller than delta x, this difference is much smaller than delta x। तो ये हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, this total part is delta f and this portion is f prime x naught into delta x। this portion ये टेंजेंट लाइन तक, ये हमारा इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे जो है दिस इज ये टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज व्हाट, tan थीटा, दिस पार्ट इज f प्राइम x naught, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है दैट इज f प्राइम x naught into delta x, ठीक है। दिस पार्ट इज f प्राइम x naught into delta x। तो ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है एरर, डेल्टा f माइनस f प्राइम x naught। तो यहां से हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, फॉर दिस मच डेल्टा x आवर एरर इज वेरी स्मॉल, डेल्टा f से काफी स्मॉल है हमारा, ठीक है। अगर हम इस चीज को अगर हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा काम खत्म। दैट मींस देन वी एश्योर दैट दिस फंक्शन इज स्मूथ, दैट मींस वी विल बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग दैट इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है इसका एक यूनिक स्लोप निकल के आ रहा है, ठीक है। उसी के लिए हम सारा कांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, और उसके बाद आया हमारा ये लिमिट। तो ये जो है हमारा रेशियो आया, दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एफ, ये हमारा एरर पार्ट है, दिस पार्ट इज द एरर पार्ट, दिस इज द एरर पार्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये एरर हम डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते थे, दिस होल डेल्टा एफ एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमने उसको और फाइन कर लिया, कैसे फाइन किया, अब हम क्या कर रहे हैं, ये एरर ले रहे हैं और इसका रेशियो ले रहे हैं डेल्टा एक्स का। दिस इज स्लाइट डिफरेंस दैट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एफ को एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, डेल्टा एक्स कैंसिल होके हमारा यहाँ पे एफ प्राइम एक्स नॉट, और ये जो पार्ट है दिस इज एफ प्राइम एक्स नॉट है। अगर आप लिमिट लगाते हो तो ये अगर एफ प्राइम एक्स नॉट हो गया तो हमारा ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा हो रहा है तो दैट मीन्स, या और सॉरी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस वी कैन से दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दिस होल पार्ट इज f प्राइम x नॉट। तो हमने क्या दिखाया, जो रेशियो ऑफ द एरर एंड द डेल्टा एक्स दैट इज आल्सो 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस को हम और फाइन कर रहे हैं, इसी चीज को हम इसमें अप्लाई करेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में। अगर एक फंक्शन x नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है देन दिस लिमिट विल आल्सो बी 0, that means the ratio of the error and the delta x, okay। तो यही कंडीशन जो है ये इंश्योर करेगा कि जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव fx एंड fy एग्जिस्ट करने के बाद भी हो सकता है वहां पे कंटिन्यूटी ना रहे, बट ये अगर हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में,
then we can say that that function is differentiable at x naught y naught. अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया कि डिफरेंशिएबल होने की वजह से, और हम इस चीज को डिफरेंशिएबिलिटी का जो हमारा नॉर्मल डेफिनेशन है दैट इज दिस, ओके, उसके बाद फ्रॉम दिस डेफिनेशन ओनली हम यहां पे पहुंचे। दैट मींस हमने दिखाया कि ये जो हमारा एरर है दैट मींस बिटवीन डेल्टा एफ एंड एफ प्राइम एक्स नॉट इनटू डेल्टा एक्स, इन दोनों के बीच में जो एरर है दैट विल आल्सो टेंड्स टू जीरो इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसी चीज को अगर हम फॉर ए फंक्शन, तो अब हम इसको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में लेके जा रहे हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं देखना चाहता हूं कि क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कहां तक समझे। किसी को कोई दिक्कत अभी सिंगल वेरिएबल तक हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, now for a function f of x, the symbol delta f called the increment of f, of course हमने अभी देखा, तो वहां पे हमारा क्या था, ये हमारा डेल्टा f था, अब हमारा टू वेरिएबल में हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, denotes the change in the value of fxy that results when xy varies from some initial point x naught y naught। ये पहले डेल्टा x naught एंड डेल्टा x naught प्लस डेल्टा x, ये हमारा पहले एक लाइन में था, अब टू वेरिएबल हो गया, अब क्या हो जाएगा, ऐसा कोई रीजियन हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा x नॉट और y नॉट है तो x नॉट y नॉट प्लस डेल्टा x डेल्टा y नॉट इस रीजियन में कहीं पे होगा। ठीक है, हमारा जो डोमेन पोर्शन है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ प्लेन बेसिकली। नाउ इसको हम डेल्टा z भी कह सकते थे, वही कह रहा था। लेट अस अज्यूम दैट बोथ fx पार्शियल डेरिवेटिव एंड fy एग्जिस्ट बाय एनालॉजी विथ वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का क्या था हमारा, एफ प्राइम एक्स नॉट एग्जिस्ट कर रहा था, तो एफ प्राइम एक्स नॉट अगर एग्जिस्ट करेगा इन फर्स्ट सिंगल वेरिएबल फंक्शन, तो सेम चीज अगर एनालॉजी अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें टू वेरिएबल केस में, देन एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट एंड एफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट एग्जिस्ट एंड डेल्टा एफ। ठीक है, डेल्टा एफ क्या था हमारा, अप्रोक्सीमेशन था डेल्टा एफ का एफ प्राइम एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, जब हमारा फंक्शन का वेरिएबल हमने चेंज कर दिया। अब एरर पार्ट क्या आ गया, जो हमारा ये था, दिस वन इज एरर। ओके, तो एरर हमारा आ गया ये, और हमारा जो डिस्टेंस था, ठीक है, नाउ एज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, मान लो इसको मैं थोड़ा सा साफ करके अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे आपका मान लो एक्स नॉट वाई नॉट है, यहाँ पे एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई है। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये आपका डेल्टा वाई हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस होगा आपका ये रूट ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। वहाँ पे डिस्टेंस था आपका सिंपल सब्ट्रैक्शन, इससे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर लेते तो आपका डेल्टा एक्स आ जाता, बट यहाँ पे जो है हमें डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा दैट इज रूट ओवर, इफ यू यूज पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है दैट इज द डिस्टेंस, so that is delta x square plus delta y square. Now if अगर ये लिमिट जो है हमारा जीरो हुआ then we can say that हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम देख लो, ये आपका x नॉट y नॉट है, दिस इज x नॉट प्लस डेल्टा x, तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज रूट ओवर डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर एंड एरर पार्ट दिस होल पोर्शन इज f of x naught plus delta x y naught plus delta y, okay, and this portion is मतलब यहाँ पे z axis पे ये है। ठीक है, यहाँ पे एरर ये वाला पार्ट इन्होंने और दिखाया नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें और फिर ड्राइंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट दिस इज मोर और लेस द डायग्राम फॉर थ्री डायमेंशन केस, बिकॉज ये समझना जरूरी है।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है मतलब क्या, दैट मीन्स हम उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम प्लेन ड्रॉ करेंगे और उस प्लेन जो कर्व को मतलब सरफेस को कट करके कर्व आएगा और उस पॉइंट पर एक्स और एफ वाई आएगा। ठीक है, तो ये एरर पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, दैट्स व्हाई दे डिडंट ड्रॉ इट। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है, दिस एंश्योर्स दैट आवर फंक्शन इन टू वेरिएबल विल बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, सर तो ये हमारा थ्योरम है। हाँ सर एफ एक्स आएगा कि एफ प्राइम एक्स नॉट वाई नॉट आएगा? अच्छा वो प्राइम है, ठीक है सर। नहीं नहीं, प्राइम की जगह पे सफिक्स पे आ गया ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव आएगा ना। ठीक है यहाँ सर। पे जैसे एफ प्राइम एक्स नॉट आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो प्राइम का FX कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है ठीक सर। है, तो थोड़ा बहुत आई गेस मैं समझा पाया इस चीज को। तो मतलब बोलने का मतलब यही है कि एकदम से एक ये थ्योरम आपको दे देना, आप लोग सोचोगे ये क्या एक्सप्रेशन है, आप रटने लग जाओगे। ठीक है, बट अगर हम सिंगल वेरिएबल से चीजों को ड्रॉ करते हुए लाए तो हमें थोड़ा सा समझ में, हमें दिमाग में रहेगा। इसके बाद मतलब इस डिस्कशन के बाद आपके दिमाग में इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा और मटेरियल होगा, क्योंकि हमें मतलब है इस डेफिनेशन से। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस करके हमारा जो प्रूफ वगैरह है, एक प्रॉब्लम दे दिया, प्रूफ दैट इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें इसका लिमिट जो है 0 दिखाना है। ठीक है, तो इसके बाद देयर इज अनदर डिस्कशन, इस टोटल चीज को बिना लिमिट के, इफ यू डोंट कंसीडर द लिमिट, इस पूरे एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन के फंक्शन के बेसिस पे ले लिया और बाद में डायरेक्ट दे जस्ट से दैट इफ दिस पार्ट इज 0, दिस इज नथिंग बट दिस ओनली, ये सेम है। ठीक है, इस पार्ट को वो एप्सिलॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ले रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम काम करा इसने, इसके बाद सेम एप्सिलॉन इनटू डिस्टेंस बिटवीन ये जो डिस्टेंस है। तो वही है आपका जो एरर है, तो उसको हमें 0 करना है, सेम चीज। ये फिर 3 डायमेंशन में हम कन्वर्ट कर दिए इसको 3 वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो यही लिमिट अगर हमारा टोटल डोमेन में अगर एग्जिस्ट करेगा, x नॉट y नॉट जो हमारा पॉइंट है, दिस बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर सारे फॉर ऑल x नॉट y नॉट के लिए ये अगर ट्रू होगा, देन वी कैन से दैट दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द होल डोमेन। सो सिंस सेम डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का ये रिलेशन है, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। कौन क्या कह रहा है? प्रवीण, रेगमी, नेटवर्क इशू, क्या करूं मैं? सॉरी दोस्त, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देख लेना। ओके, दिस प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट you can focus on the theorem only. देख सकते हो, आसानी है तो बस जरूरी नहीं है। तो there is another condition, if all first order partial derivative of f exist and are continuous at a point, then f is differentiable at that point. That means मान लो x नॉट y नॉट कोई पॉइंट है, तो that means fx x नॉट y नॉट, fy x नॉट y नॉट एग्जिस्ट करना पड़ेगा एंड दे हैज टू बी कंटिन्यूअस। दैट मीन्स कंटिन्यूस किन कौन सा होगा, ये दो वैल्यू एग्जिस्ट करना पड़ेगा एंड fx xy एंड fy xy they has to be continuous at x naught y naught. ठीक है, then we can say that function is differentiable at that point. Okay, so this is a function of 3 variable
तो ये दो वैल्यू एग्जिस्ट करना पड़ेगा और ये जो हमारा फंक्शनल एक्सप्रेशन है दे हैव टू बी कंटिन्यूअस। नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, इस चीज को हमें पहले हम वो जो एज्यूम कर रहे थे, व्हाट इज इट, दिस इज द एफ प्राइम एक्स नॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, सिंगल वेरिएबल केस में एनालोगस हमारा ये था। तो इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं df और dz। ठीक है, df और dz और df भी कहते हैं। तो अगर आपका मोर फंक्शन ऑफ मोर देन सेवरल वेरिएबल हो जाता है तो इस एक्सप्रेशन को हम टोटल डिफरेंशियल कहते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल। ओके, सेम थिंग। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है आप लोग थोड़ा सा घर में स्टडी करो। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास we'll discuss these two problems. ठीक है, उसके बाद आप लोग समझ जाओ कि ये इन दो प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना यहाँ पे थोड़ा सा घर में एक दो बार इस पूरे पोर्शन को रीड आउट करो। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट है, टू वेरिएबल, दैट विल बी एम्बॉस्ड। ठीक है, ओके, अब हम थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, जो डाउट आपने भेजा था, लेट मी जस्ट फाइंड आउट। डाउट भेजा था अंकिता ने। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर r एज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ t। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2r dt2 इक्वल टू 32k। सॉरी, इनिशियल कंडीशन है आपका r0 इक्वल टू 100k एंड dr dt at t equal to 0 equal to 8i plus 8j। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? What we need to find out? हमें यहाँ पे RT निकालना है और उसके लिए हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन है। तो इसको कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? सर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका सेकंड जो d2r अपॉन में dt स्क्वायर है, इसके बाद में आएगा 32t के इक्वल्स टू पुट कर देंगे उस वैल्यू के। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा आएगा 32tk। t के तो ये क्या अब आएगा t0 हमारा? एक मिनट, ये क्या आएगा हमारा? तो ये r dr बाई dt है। dr बाई dt है ये। ठीक है, अब एक बार हम t0 पे निकालेंगे। t अब क्या है, t0 पे निकालते हैं। अभी थोड़ी t0 पे निकालेंगे। हाँ, अभी इसको t0 पे निकालेंगे। तो 0 पे हमारा ये वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 पे क्या आएगा, आ जाएगा ये वैल्यू ये दिया हुआ। वाली k वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, वो 8i प्लस 8j हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारा एक इंटीग्रल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 8i प्लस 8j। तो हमारा कांस्टेंट जो आएगा दैट इज 8i प्लस 8j। तो अब हम क्या करेंगे? अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे 0 पे और किसको इंटीग्रेशन करेंगे अब? dr dt को? 8i और 8j जो आया है इसे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे ना। पक्का? सिर्फ इसे करेंगे? dr dt क्या है अभी हमारे पास? dr dt हमारे पास है अभी, देख। सर t0 पे 32t के वाला 0 तो हो जाएगा फिर। नहीं, हम 0 पे नहीं लेंगे ना अब इंटीग्रेशन करते टाइम। 0 पे ये वैल्यू हमें क्यों चाहिए? ये इंटीग्रल कांस्टेंट को निकालने के लिए चाहिए। अब हमारा dr dt क्या है? 32tk।
ये हमारा dr/dt है। अब हम फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर 0 पे 100 के लेके उसका कांस्टेंट को निकालेंगे, तब जाके हमारा RT आएगा। समझ रहा है? लास्ट में भी तो सर t 0 पुट करने पे तब भी 0 ही आना वो। नहीं, हमें RT चाहिए ना, हमें RT का एक्सप्रेशन चाहिए, दैट शुड बी ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, अब अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा हमारा? RT हमारा आएगा 80 I प्लस 80 J प्लस t स्क्वायर 16 t स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब हमारा R0 इक्वल टू क्या है? R0 इक्वल टू है 100 के, तो C इक्वल टू क्या आएगा? C इक्वल टू हमारा आ जाएगा 100 के, तो हमारा RT क्या आएगा? RT आ जाएगा हमारा 80I प्लस 80J प्लस 16 प्लस 100 t स्क्वायर के 116 t स्क्वायर के, ये हमारा RT होगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे तूने जीरो इंटीग्रेट जब यस करना है, सर, ठीक है सर। यस सर। इंटीग्रेट जब करना है वो 32k को वैनिश मत कर देना, 0 डाल के आप ये दो वैल्यू इसीलिए दिया गया है कि ताकि आपका जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है C1 C2 कर देते हैं हम, C1 और C2 के वैल्यू निकाल पाओ। जब आप फिर से इंटीग्रेट करोगे इसको, आपको 32tk को कंसीडर करना है। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, अब चंदर का प्रॉब्लम देखते हैं। क्या दिया था तूने? फाइंड द, लिख लेता हूं मैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated when the region enclosed between y equal to root x, x equal to 1, x equal to 4 and x-axis is revolved about the y-axis using washer method and cylindrical shell method. तो बेसिकली हमें दो मेथड से करके इसके आंसर्स को कंपेयर करना है कि वी नीड टू शो दैट दे आर सेम, राइट? तो हम पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं शेप, है ना? y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू अगर हम रूट एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दैट मीन्स ऐसा अगर आपका पैराबोला आएगा, ठीक है? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हमारा x इक्वल टू, ठीक से ड्रॉ करते हैं। सर इस वाले चैप्टर की भी रिवीजन करेंगे ना? रिवीजन तो कितनी बार करना पड़ता है? ऑलरेडी 2 बार रिवीजन हो गया इस वाले चैप्टर का। सर इस वाले का? हाँ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, सो मत। और इस वाले चैप्टर का मैंने पहले भी एक बार कराया था और फिर दोबारा भी कराया मैंने।
सेमी लिमिट के बाद। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये हमारा रीजियन है, ठीक है, रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस यूजिंग वॉशर मेथड एंड सिलिंड्रिकल शेल मेथड। हाँ चंद्र, अब बता तेरा कहाँ पे, मुझे एक बार फॉर्मूला बता दे क्योंकि मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ इसका। व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था हमारा? सर वॉशर से नहीं निकला मेरे पे, सिलेंडर वाला तो मैंने निकाल दिया। वॉशर से क्यों नहीं निकला? वॉशर में क्या कंसेप्ट था हमारा? व्हाट वाज द कंसेप्ट? अच्छा, वॉशर अबाउट द वाई एक्सिस यूजिंग वॉशर मेथड। अच्छा, अगर वाई एक्सिस के अराउंड हम इसको घुमाएंगे तो हमारा क्या आएगा? ठीक है, इस तरह का कुछ आएगा हमारा, ठीक है, राइट। We will get something like this. तो सिलिंड्रिकल का क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सिलिंड्रिकल? सिलिंड्रिकल का क्या फॉर्मूला था? सर हाँ जी, सर y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ सर टुवर्ड्स राइट होगा ना, हाफ कैसे होगा? अच्छा गलती का रखा मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना ये तो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। सर ये इसमें तो ग्राफ, वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू ओहो एक्स। हाँ राइट 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 राइट, हाँ इसमें यही वाला होगा, हाँ गलती करी मैंने, राइट, इसमें वाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ देख चंदर, तूने मेरी तरह कोई गलती तो नहीं करी? चंदर यही किया सर मैंने भी। तभी तो नहीं हो रहा था। यही 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 फायदा है ना ग्रुप डिस्कशन करने का। हमसे कई बार चीजें ना छूट जाती है सब कुछ पता होने के बावजूद। तो हमारा ग्राफ जो होगा रूट एक्स का वो होगा इस तरह से, राइट। अब ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ होगा इस तरह से, और ये होगा हमारा x इक्वल टू 1, ये होगा x इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाएंगे। तो अब हमारा वॉशर मेथड से करते हैं। वॉशर मेथड का यार मैं कंसेप्ट देख लेता हूँ एक बार, भूल गया हूँ कंसेप्ट। वेयर इज माय कंसेप्ट? ये है हमारा, वॉशर मेथड से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, पाई ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वॉशर मेथड का फॉर्मूला है। तो ऐसे हमें वॉशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बट हमारा फॉर्मूला होगा एफ वाई और जी वाई के टर्म्स में, राइट। हम रिवॉल्व कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। और हमारा रेडियस होता है हमारा एफ एक्स और जी। तो हमें दो रेडियस चाहिए, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया दिस होल थिंग, और दूसरा है हमारा ये दो रेडियस है। तो पाई 4 स्क्वायर माइनस, अब इसका क्या इक्वेशन है? व्हाट इज दैट इक्वेशन? ये क्या डिस्टेंस है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस?
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? y, हाँ, y के रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर तो दिस इज y इक्वल टू रूट एक्स, सो x इक्वल टू हमारा होगा y स्क्वायर। ठीक है, सो दिस पार्ट इज y स्क्वायर dy। और यहाँ पे मुझे लग रहा है और एक चीज मैंने गलती करी। अब हमें क्या चाहिए? x इक्वल टू जब 1 होगा, y इक्वल टू हमारा 1 होगा। अच्छा, इसको ना दो पार्ट में करते हैं वाशर मेथड से, और x इक्वल टू जब 4 होगा, y इक्वल टू होगा हमारा 2। एक बार इस पार्ट का निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2। तो ये जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। और दूसरी बार क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं इस चीज को। दूसरी बार हमें और इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार ये दिस प्लस इसका हम क्या निकालेंगे, पाई ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये ऐड कर देंगे। तो ये वॉशर मेथड का हमारा हो जाएगा। समझ में आया चंदर? नो सर। क्यों? एक बार मैं ये कर रहा हूं, हमारा क्या काम है, हमें ये टोटल इस चीज का चाहिए। तो इसको अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा ना हमारा। इस चीज का वॉल्यूम चाहिए ना हमें, तो डायग्राम समझ आ रहा है? यस सर। डायग्राम समझ ना, इस टोटल चीज का वॉल्यूम चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमें जो है, अब मैं इसको डिलीट रिमूव कर देता हूँ, मैं अलग से रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये जो पार्ट है ये जो है ये बाहर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इस चीज का निकाल रहा हूँ। पहले जो है मैं इस पार्ट का निकाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का। समझ रहे हो? इसका मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। इसका वॉल्यूम क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है डिस्टेंस, x इक्वल टू 4 है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y स्क्वायर है डिस्टेंस। और यहाँ पे हमें 1 से 2 तक का मैंने दे दिया, तो ये एक आ गया। तो ये वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट तो एक सिलेंडर ही है। जो नीचे वाला पार्ट है दैट्स ए सिलेंडर। तो नीचे वाला पार्ट का क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला पार्ट, एक मिनट रुको, नीचे वाला पार्ट में भी शायद हमें इंटीग्रेट करना पड़ जाए। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। नीचे वाले पार्ट में हमें सिर्फ इस पोर्शन का चाहिए, तो ये होगा हमारा dy, y इक्वल टू होगा 0 to 1। तो नीचे वाले पार्ट के लिए हमें ये वाला पार्ट चाहिए। अब समझ में आया? इसका तू करके देख ले, क्योंकि ये आई थिंक कंसेप्चुअली राइट है। ठीक है, इसका कैलकुलेट करके बता वैल्यू क्या है, और ये मैच करा ले सिलिंड्रिकल शेल मेथड से अगर तेरा हुआ हो तो। नहीं आएगा पर y की पावर 4, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा पाई, हाँ राइट राइट करेक्ट, 1 पर 4 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एक बार मैं इस पार्ट का रिवॉल्यूशन निकाला, इस पार्ट का,
ठीक है, और दूसरी बार मैंने क्या करा, इस पार्ट का सॉल्यूशन निकाला। अब तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ का प्रॉब्लम है चंदर? ये पता नहीं सर, किसी ने भेजा था मेरे पास में किसी क्वेश्चन पेपर का। मतलब प्रीवियस ईयर का? तो ये समझ में आया तेरे को मैंने क्या करा यहाँ पे? मेथड समझ में आ गया, बाकी मैं कैलकुलेशन कर लूंगा बाद में। मेथड समझ में आ गया ना तेरे को? यस सर। हाँ, अब तो कैलकुलेशन भी हो जाएगा इसका। हम्म। ठीक है, दोनों पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया इस चीज को। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।